Let us see the next question. ABC Limited has an investment opportunity available which will involve a capital outlay in the next year, and it will produce the benefits during the following 2 years. A summary of the financial implications of this investment is given below. एंड ऑफ ईयर वन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हमको कैश इनफ्लो मिलेगा. ABC Limited currently has 100 shares in issue. The dividend, highlight the portion just paid, was rupees 15 per share. Highlight the portion in absence of above investment. Dividend are expected at this level for the next 2 years, but will then demonstrate a perpetual growth of the 15% per annum. ABC Limited is currently all equity financed at the required rate of return of the equity investor estimated to be 25%. The company has a long established policy of not using any debt finance. बाहर का पैसा लेने का ही नहीं. And because of the current depressed state of the stock market, could not in the near future issue new equity. The only possible way of the financing, highlight the portion, the only possible way of the financing. The investment is therefore to reduce the dividend payment made in the next year. Cash received from the new investment will all be distributed. Growth in the dividend at 15% will also be maintained because of other operations. Question number 1A. Calculate current market price of ABC Limited. 1B and 2 ऐसा करके आगे क्वेश्चन है. I want you to write in the chat box answer of question number 1A. फिर मैं आपको करके देता हूँ. सिर्फ 1A का आंसर आप लोग कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में डालिए. Let us see how to do answer. पहले क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1A में, कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर. यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डेट से इसका इंफॉर्मेशन अभी इग्नोर करने का है. इसका क्या काम है अभी? अभी हम लोग कुछ ऐसा फोकस करेंगे. जस्ट पे डिविडेंड इज ₹15 इन D0 दे रखा है. अगर ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड एट दिस लेवल फॉर द नेक्स्ट 2 years. यानी डिविडेंड जो हमारा ₹15 था वही का वही रहेगा नेक्स्ट 2 साल के लिए, और उसके बाद परपेचुअली के लिए ग्रो होगा एट 15%. ऐसा हमको दे रखा है. चलो, I request all of you to write down answer along with me. Heading right down. Calculation of dividend per share. Year 1 to year 3. I request you to write down answer along with me. Calculation of dividend per share of year 1 to year 3. सर 3 साल का डिविडेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो क्या दे रखा है कि पहले तो 2 साल का ग्रोथ रेट क्या होगा 0, और थर्ड ईयर से ग्रोथ रेट क्या होगा फ्रेंड्स 15%. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. डिविडेंड पर शेयर ₹15. ग्रोथ रेट क्या है 0 है, यानी क्या होगा ₹15 का इटसेल्फ डिविडेंड फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में. एंड थर्ड ईयर में डिविडेंड क्या होगा फ्रेंड्स? ₹15 इंटू 1.15 रेज टू 1, that is 17.25. That is the way the dividend per share is calculated from end of year 1 to end of year 3. Working note number 2. Calculation of P2. It is D3 upon KE minus E. Third year dividend is 17.25. Divided by cost of equity.
कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 25%। और ग्रोथ रेट कितना है? 15%। सो 17.25 डिवाइड बाय 0.10 कितना होगा? 172.5। तो ये 172.5 क्या होगा? P2, प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ P0 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड इनकम कितना है? 15 रुपए। सेकेंड ईयर का डिविडेंड इनकम कितना है? 15 रुपए प्लस P2 क्या है? 172.5। सो इन दोनों का टोटल क्या होगा? 187.5। इसको डिस्काउंट करेंगे 25%। फर्स्ट ईयर का फैक्टर, सेकेंड ईयर का फैक्टर, एंड बेस्ड ऑन दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ P0। वन 187.5 into 0.64, so 120, that comes to 132. This is the way the P0 is formed. Please take down answer. So this is the way the P0 is calculated अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो। 1A उस पर क्या दे रखा है आपने को? हमको करंट प्राइस कैलकुलेट करना है। करंट प्राइस का मतलब क्या? अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो। 1B क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, कैलकुलेट द शेयर प्राइस आफ्टर इन्वेस्टमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड। तो आपको प्राइस कैलकुलेट करना है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होने के बाद। Assuming the market knows of the dividend changes that will result from the investment using dividend valuation model। यानी कि ये जो अगर हम लोग प्रोजेक्ट लेंगे तो उसकी वजह से जो डिविडेंड का चेंजेस आएगा वो सब इन्वेस्टर्स को पता है, उस हिसाब से हमको प्राइस कैलकुलेट करना है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भी दे रखा होता तो भी हम लोग ऐसा ही अज्यूम करते। I request you to make the calculation of the P0 after accepting the project. Please write answer in the chat box. चलो, I request all of you to pay attention. Let me explain you. हम लोग ऐसा एक वर्किंग नोट बनाएंगे। प्लीज पे अटेंशन। वर्किंग नोट नंबर 1B के लिए कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पर शेयर फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर एंड, ऐसा करेंगे। ऐसा क्या वो भी मैं आपको समझाता हूं। कॉलम नंबर 1 इज ईयर, फर्स्ट ईयर एग्जिस्टिंग बिजनेस से हमारा डिविडेंड पर शेयर होगा 15 रुपए। सेकेंड ईयर एग्जिस्टिंग बिजनेस से हमारा डिविडेंड होगा 15 रुपए। थर्ड ईयर एग्जिस्टिंग बिजनेस से हमारा डिविडेंड पर शेयर होगा 17.25। फोर्थ ईयर एग्जिस्टिंग बिजनेस से होगा 19.8375। ऐसा करके हमारा ईयर 1 टू ईयर 4 का डिविडेंड पर शेयर होगा एग्जिस्टिंग बिजनेस से, ऐसा हम लोग समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट द कंपनी हैज 100 शेयर्स इन इश्यू। यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि टोटल डिविडेंड जो हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से पे कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में 1500 रुपए, सेकेंड ईयर में अगेन 1500 रुपए, थर्ड ईयर में 1725, फोर्थ ईयर में 1983.75।
That is the way we will have say the dividend per share say from end of year 1 to end of year 4, and say the total amount of the dividend said to be paid from the existing earning. अच्छा, listen carefully. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से हमको फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है. हमारा जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें 100% इक्विटी है, ऐसा दे रखा है. क्वेश्चन में दे रखा है डेट से इट इज करंटली ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड. दूसरा हमको ऐसा दे रखा है डेट से कंपनी का पॉलिसी है डेट फाइनेंसिंग नहीं लेने का. तीसरा ऐसा दे रखा है कि मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग नया इश्यू नहीं कर सकते हैं. चौथा ऐसा दे रखा है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए हमारा जो अर्निंग है ना उसी को हमको बिजनेस पर री इन्वेस्ट करना पड़ेगा. यानी क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट ईयर में 1,500 रुपए का डिविडेंड पे नहीं करेंगे. हम लोग क्या करेंगे, 1,000 रुपए का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट. ये फिर हमारा हो जाएगा नेट कैश फ्लो. यानी फर्स्ट ईयर में 1,500 की जगह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 500 रुपए का डिविडेंड पे करेंगे. लाइक दैट से दे हैव प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन. फिर क्वेश्चन में हमको बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रखा है. कैश रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टमेंट विल ऑल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. यानी हमको ऐसा दे रखा है दैट से द सेकेंड ईयर में से वी विल बी हैविंग से द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड एग्जिस्टिंग बिजनेस से 1,500 और नए प्रोजेक्ट से कैश इनफ्लो आएगा 900, यानी कुल मिला के 2,400. सो 2,400 के से 1,500 प्लस 900. थर्ड ईयर में वी विल हैव 1,200 एस एडिशनल डिविडेंड टू बी पेड. यानी कितना होगा 1,725 प्लस 1,200, यानी क्या होगा 2,925. फिर हमारा ये जो नया प्रोजेक्ट था वो तो खत्म हो गया. कब, थर्ड ईयर के एंड में. अच्छा, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट्स द ग्रोथ रेट in dividend at 15% will be maintained because of other operations. यानी हमारा अभी सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस ही बचा है, और जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस बचा है उसके ऊपर से हम लोग फोर्थ ईयर में डिविडेंड पे कर पाएंगे 1,983.75. Remember that say the fourth year dividend does not depend upon the third year dividend. क्यों? क्योंकि जो हमारा थर्ड ईयर का डिविडेंड होगा ना 29 rupees 25 paise, that is influenced with the cash flow from the new project. इसलिए हमारा से जो फोर्थ ईयर का डिविडेंड होगा that does not depend upon the third year dividend, but जो हमारा फोर्थ ईयर का डिविडेंड होगा that will be calculated only using the existing operation. ये तो नेट कैश फ्लो हुआ. अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है. डिविडेंड पर शेयर करेंगे. पहले साल क्या होगा 5 रुपए, दूसरे साल क्या होगा 24 रुपए, तीसरे साल का क्या होगा 29 रुपीज 25 पैसे, चौथे साल का क्या होगा 19.8375. ऐसा करके हमको ईयर 1 टू ईयर 4 का डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा. अच्छा, एक बार डिविडेंड हो गया उसके बाद तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. कैलकुलेशन ऑफ P3, it is D4 divided by K minus C. $19.8375. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 25%. ग्रोथ रेट कितना, ग्रोथ रेट 15%. So 19.8375 upon 0.10. So 198.375. ये कब का है, इट इज ऑफ ईयर 3 एंड. ऐसा करके हमको क्या करना है, से थर्ड ईयर का प्राइस कैलकुलेट करने का है.
नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ P0. अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को 3 साल का नहीं, मेरे को और नंबर ऑफ ईयर्स का कैश फ्लो सीरीज बनाना है, तो क्या मैं बना सकता हूँ? हाँ, आप बना सकते हो. कम नंबर ऑफ ईयर्स का नहीं बनाना फ्रेंड्स. कम नंबर ऑफ ईयर्स में क्या आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा. सो 524 एंड 29.25. P3 में क्या आएगा? 198.375. So 29.25 plus 198.375. So 227.625. ये कैश फ्लोज को हम लोग डिस्काउंट करेंगे. व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर? 25%. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. और फिर उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. So 5 rupees into 80 paise, that comes to 4. 24 into 64 paise, 15.36. 227.625 into 0.512, that is 116.544, plus 15.36 plus 4, that is 135.904. ये नया प्राइस है. That is the way the second question answer can be found. Please write down answer of the question. तो डिविडेंड पर शेयर पहले 4 साल का. Write down P3 working. Write down P0. चलो अभी कैलकुलेशन ऑफ द P0 इज डन. आई जस्ट रिपीट द वर्किंग. सबसे पहले हमने हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस का डिविडेंड पर शेयर लिखा. नंबर ऑफ शेयर्स को लेके टोटल डिविडेंड कैलकुलेट किया. कैश फ्लोस ऑफ द प्रोजेक्ट को उसमें इनकॉर्पोरेट किया. नया कैश फ्लोस आ गया, नया डिविडेंड आ गया और डिविडेंड पर शेयर. उसके बेसिस से P4 दैट इज P3 एंड उसके बाद P0 का कैलकुलेशन. दिस इज व्हाट से वी हैव डन. नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन. In order to calculate answer for the B part of the question 1B, a student can do working like this also. Student क्या कर सकता है? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ NPV पर शेयर कर सकता है. देखो ये प्रोजेक्ट का कैश फ्लोस अपने को दे रखा है क्वेश्चन में. यस. डिस्काउंटिंग फैक्टर है 25%. यस. उसके बेसिस से प्रेजेंट वैल्यू होगा. यस. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. कैश आउटफ्लो है 1000, इनफ्लो है 900 और है 1200. डिस्काउंटिंग फैक्टर और उसके बेसिस से प्रेजेंट वैल्यू. सो क्या किया जाएगा? 900 इंटू 0.64, that is 576. 1200 into 0.512, so it is 614.4. तो NPV is 390.4. उसको डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ शेयर्स. कितना है? 100. और हम लोग कैलकुलेट करेंगे NPV पर शेयर. इट इज 3.904. यानी हमने क्या किया फ्रेंड्स? नया प्रोजेक्ट लेने की वजह से NPV क्या होगा वो कैलकुलेट किया. एंड वी अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट ऑफ द NPV इज इंडिकेटिंग द अमाउंट बाय विच वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेस. तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? वी कैन डू वर्किंग लाइक दिस. रिवाइज्ड P0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट द शेयर प्राइस. तो मेरे को तो प्राइस ही कैलकुलेट करने का. क्या किया जा सकता है? करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर.
प्लस एनपीवी पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस सर कितना है? 132 है। एनपीवी पर शेयर कितना है? 3.904 है। So it is 135.904. That is the way revised the P0 is calculated. I request all of you to write an answer for the alternative method if you want to write. तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? एनपीवी कर सकते हैं और फिर एनपीवी पर शेयर को यानी बेनिफिट पर शेयर को एग्जिस्टिंग प्राइस में ऐड कर देते हैं। देखो लॉजिक यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो 132 है ना, दैट इज इंडिकेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस, और ये क्या बताता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द न्यू बिजनेस, और उसके ऊपर से हमारा नया प्राइस का कैलकुलेशन हो जाता है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी अंडरस्टैंड एट से अभी का मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 132 है। नया प्रोजेक्ट लेने के बाद प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस टू 135, so 135 is more than 132, so you should accept the project। या तो फिर अगर आपने यहाँ पे एनपीवी से आंसर किया है तो भी आप लिख सकते हो एनपीवी पॉजिटिव होने की वजह से यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर along with me। Answer for the second part of the question। The company should accept the project because NPV of the project is positive, full stop। ऐसा लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? After accepting the project, price of equity share increases, so accept the project। Full stop। This is what we can write। Now I am reading this question once again with certain explanation। ABC Limited has an investment opportunity available which will involve the capital outlay in the next year and will produce a benefit for the following 2 years। Yes, हम लोग ये देख सकते हैं कि हमको ऐसा ही दे रखा है। A summary of the financial implication, ये चलो ठीक है, हमको दे रखा है। ABC Limited currently has 100 shares in issue and has just paid dividend of ₹15, यानी D0 दे रखा है अपने को 15 रुपये। इन एब्सेंस ऑफ अबव इन्वेस्टमेंट, यानी अगर ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड एट दिस लेवल फॉर द नेक्स्ट 2 years। डिविडेंड यही के यही लेवल पे रहेगा और 2 साल के लिए, बट विल देन डेमोन्स्ट्रेट अ परपेचुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15%। ABC is all equity finance at the required rate of return of 25%। The company has a long established policy of not using debt finance because of the current depressed state of the stock market, could not in the near future issue new equity। Now friends, अगर ये नहीं दे रखा होता ना तो भी हमको फिर समझ जाने का। The only possible way of the financing is of the investment is therefore to reduce the dividend payment made in the next year। ये हमको फिर समझ जाने का। Cash received from the new investment will be distributed। Growth in the dividend at the rate of 15% will also be maintained because of other operations। ये भी हम लोग मान लेंगे क्योंकि ये जो नया प्रोजेक्ट है ना वो टेम्पररी है, अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना वो तो चलने ही वाला है। Calculate the P0 current market price of the equity share। Calculate the share price after the investment has been made, has been accepted।
assuming that the market knows of the dividend changes that will result from the investment using the dividend valuation model. ये नहीं भी दे रखा होता तो भी हमको ऐसा मान लेने का कि इन्वेस्टर्स को पता ही है हम लोग ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग अपने एक जो चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसमें पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, उसमें फ्रेंड्स ऐसा ही अजम्पशन है क्या कि मार्केट में सबको पता ही है कि हम लोग क्या करने वाले हैं और उस हिसाब से प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज इमीडिएटली इन्फ्लुएंस्ड। इसका ऐसा मतलब होता है वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, तो उसमें हम लोग बोलेंगे हाँ प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि एनपीवी से किया तो एनपीवी पॉजिटिव है, प्राइस से किया तो प्राइस बढ़ेगा, इस वजह से।